Good morning students, Jai Hind students. Now welcome in our Tirupati International School, class 12, subject chemistry, and now our chapter number 1, haloalkenes and haloarenes. So in the last lecture we already discussed about the IUPAC names, what is the meaning of haloalkenes, what is the meaning of haloarenes. Alkenes, that means you know very well that the chain formation, you can see the single bonds present in the two carbon atoms, but in the haloarenes that means you can see that haloarenes, that means the cyclic form, okay, in the condition of the cyclic form, clear, and attached with the halides, haloarenes. So now we start from the method of the preparations of haloalkenes. तो बेटा हमने कुछ डिस्कस किया था, but now we revise this topic. Suppose method preparations of haloalkenes. First, from alcohol. Alcohols, okay. When the alcohol react with HCl presence of ZnCl2, they gives to RCl, या RBl, RCl plus H2O, alkyl chloride and water molecule. ZnCl2 is the catalyst, clear. Now in first, second, ROH plus NaBr, sodium bromide. When the alcohol react with the sodium bromide, they gives to RBr plus NaHSO4 प्लस H2O, क्लियर बेटा. ये हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको फास्ट कर रही हूँ. लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने. ROH प्लस PX3, दैट मीन्स पेंटा ट्राइक्लोराइड, ट्राईहेलाइड भी कैसे वॉट एवर आप जो भी लेते हो, या क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वॉट एवर. सो पेंटा ट्राईहेलाइड्स, क्लियर. दे गिव्स टू 3RX, अल्कोहल के अपने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 3RX plus H3PO3, clear. Now fourth point, ROH, presence of red phosphorus catalyst, okay. X2, they gives to alkyl halide, clear. Fifth point, ROH react with SOCl2, they gives to RCl plus SO2 and plus HCl, clear. So now this is the preparations method from the alcohol, okay. Different type use of your alkyl halides, I think so. Hydrogen chloride, sodium bromide, PX3, phosphorus, trichloride, tribromide, whatever, okay. Different type of the catalyst present. Alcohol react, ROH react with the हैलाइड, X ले लिया आपने, मैंने X2 लिया था बेटा, ठीक है. यहाँ पे Cl2, Br2, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है. सो नाउ दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम द फर्स्ट अल्कोहल, क्लियर. नाउ इन सेकेंड पॉइंट, प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम द बेटा इसलिए मैंने फर्स्ट किया कि ये टॉपिक हम कर चुके थे, लेकिन प्रिपरेशन मेथड स्टार्टिंग से करें तो बेटर आपको लर्न भी रहेगा. सो नाउ सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. सेकेंड मेथड फ्रॉम hydrocarbons, okay. So now we use that CH3, CH2, CH2, CH3, that means butane, okay. 4 carbon present, you know very well that IUPAC name of this, butane. Presence of UV light react with the chloride और उसको हीट किया आपने, ठीक है. सो नाउ दे कन्वर्ट इनटू द 2 प्रोडक्ट. इसको अपने 2 ले सकते हो, इसको राइट डाउन. 1 Cl attached with the 1 and other Cl, you can say 1 chlorobutane and 2 chlorobutane, CH3, CH2, CH2, CH2 and Cl, 1 chlorobutane plus CH3,
CH2, CH, Cl, CH3, 2 chlorobutane. Okay, so we write their name 1 chlorobutane and 2 chlorobutane. Okay, clear? Now third preparation method from alkenes. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द आपको कैटलिस्ट बेटा लर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन रिएक्शन में कई बार सीधे देते भाई कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए. कैटलिस्ट अगर कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर बोथ आर मोर इफेक्ट इन द रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्लियर? अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो उससे बेटा डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं. सो नाउ फ्रॉम एल्कीन्स वी राइट हियर अकॉर्डिंग टू मार्कोविनको रूल ऑफ Markov rules, CH3 CH double bond CH2 plus HI react gives to two product, one iodopropane and the 2 iodopropane. Clear? CH3 CH one iodopropane and 2 iodopropane. Clear? So this method according to मार्कोविनको रूल ऑफ 11th बेटा मार्कोविनको स्पेसिफिक से पढ़ चुके भाई. इसमें रिएक्ट क्या करेगा, जहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की क्वांटिटी लेस होगी वहाँ पे वो H वहाँ जाके ऐड हो जाएगा इन द मार्कोविनको रूल. ओके, सो नाउ halogen exchange. Next method, halogen exchange. Halogen exchange. Now in halogen exchange, alkyl halide react with the sodium iodide. They okay, देखो बेटा इसमें दोनों हेलोजन है. X में यहाँ पे Cl क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है. X यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमाइड ले लिया आपने. X इजिकल टू क्लोरीन अदरवाइज ब्रोमाइड. देन दे गिव्स टू alkyl iodide plus sodium halide. Clear? So now halogen exchange. Clear? So that reaction known is the halogen exchange. Clear? ओके, सो नाउ अब बेटा हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स. अभी तक हमने जो पढ़ा किया था फ्रॉम द एल्काइन्स, फ्रॉम द एल्कोहल्स. ओके, क्लियर? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स वॉट एवर जो भी. सो दिस इज द प्रिपरेशन मैथड ऑफ हेलो एल्किन्स. नाउ नेक्स्ट इज द फ्रॉम हेलो एरिन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स. हेलो एरिन्स दैट मीन्स रिंग फॉर्मेशन, या यू कैन से द बेंजीन रिंग, दैट मीन्स हेलो एरिन्स. Clear? Understood? Now our next topic, preparation method of haloarenes. Okay, so now suppose alkyl, you see, methyl benzene react with the halides, presence of Fe, and this is the dark reaction. They gives to, इसको toluene भी कहते हैं. You know, the simple name is the toluene. So you write down that ortho halotoluene plus para-halotoluene. Okay, ortho-halotoluene and para-halotoluene. So clear?
फ्रॉम नेक्स्ट इज द फ्रॉम एमाइंस बाय सैंडमेयर रिएक्शन। फर्स्ट बेटा ये हमारी थी, ठीक है, प्रिपरेशन में। सेकेंड फ्रॉम, इट इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम amines by, you know very well that what is the formula of the amines by Sandmeyer okay reactions. So first you write down the formula of the amine. NH2, presence of NaNO2 plus HX 278 Kelvin, there gives to benzene diazonium halide। यहाँ पे बेटा क्या करेगा, N प्लस ही रहेगा और X आ जाएगा, ठीक है। सो N plus X minus, that is known as the benzene diazonium halide। Okay, first amines react with the presence of NaNO2 and hydrogen halides. This temperature 273 to 278 Kelvin, they convert into the intermediate because इसको बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड के किस पे जब चार्ज आएगा तो उसको कहेंगे प्लस माइनस बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। क्लियर? एंड व्हेन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड्स वंस अगेन react with the Cu2X2, they gives to aryl halide। and N2, that is known as the aryl halide। Okay, so this reaction is the very most important। First amines react with the HX, presence of NaNO2। क्लियर? टेम्परेचर तो मस्ट भी आपको बेटा लर्न होना चाहिए 273 to 278 Kelvin। दे कन्वर्ट इनटू द बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एंड रिएक्ट विद द Cu2X2, दे कन्वर्ट इनटू द एराइल हैलाइड। N2 बेटा इसमें से निकल जाएगा। क्लियर? ओके, 1 minute। N2 क्लियर एंड N2X माइनस। अंडरस्टूड? अब देखो बेटा इसमें कुछ जो एग्जाम्पल टेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा सॉल्व करना वो उसके रिलेटेड ही है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मोस्टली गिव रीज़न वाले क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, ठीक है, या वाई वाले क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कन्वर्जन वाले रिएक्शन मोस्टली इंक्लूड इन द प्रिपरेशन मेथड एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो गिव रीज़न एंड वाई वाले क्वेश्चन हमें मोस्टली 95% फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। क्लियर? फिजिकल स्टेट, पॉलीमराइजेशन में कैसा किस टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का। सपोज टॉपिक ले लिया एल्कीन एल्काइंस का, तो उसका पॉलीमराइजेशन कैसा होगा, ठीक है, उसके रिएक्शन। तो गिव रीजन वाले क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? एल्काइल हाइलाइट्स आर colorless, okay, and where pure bromides and iodides develop color when exposed to light। अगर प्योर हम लोग ब्रोमाइड्स लेते हैं, प्योर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर
when exposed in light. Clear? सेकेंड आता बेटा हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. melting and boiling point. Okay, methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride are some chlorofluoromethanes are gases at room temperature. ठीक है बेटा, रूम टेम्परेचर गैसेस कौन कौन से थे? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड. These are gases at the room temperature, but in the higher members they are included in the liquid and solid state. Clear? So you write down methyl chloride and methyl bromide and ethyl chloride these are gases in room temperature. Gases at room temperature, but in the higher members are I think so hexane, heptane, butane. For example ये सारे बेटा क्या होते हैं? आई थिंक सो 1 क्लोरोहेप्टेन या 1 ब्रोमोहेप्टेन. ठीक है, दीज आर इंक्लूड इन द लिक्विड एंड सॉलिड. मतलब हायर members are liquids or solids. Okay, clear? Now next is the बेटा इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं उसके बुक में. इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है. ठीक है, डेंसिटी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? यू नो वेरी वेल द डेंसिटी हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो उसका डिस्कस नहीं करेंगे उसमें. ठीक है, ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर. ब्रोमो आयोडो polychloro derivatives of hydrocarbons are heavier than the water. ओके, इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है. किसकी? ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. क्लियर? द डेंसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. You know very well that, and hydrogen atoms and atomic mass of the halogen atom. Clear? Solubility. Alcohols are the very slightly soluble in water, but it is a solvent in the just like the benzene. हो सकता है उसमें डिजॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, बेंजीन है और बेटा ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होंगे. क्लियर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट मोस्ट अब वापस अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स. ठीक है, तो मोस्टली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद द मेटल. सो chemical reaction, the reaction of haloalkanes, nucleophilic substitution reaction, lone pair. Okay, it is represented by Nu, and this is the lone pair electrons present. Clear? So now our next topic, chemical reactions of haloalkanes.
chemical properties of haloalkanes. Okay, so now these are divided into three part. First, अगर बेटा हम उसके बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सब्स्टिट्यूशन. सो सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके. सो नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा ये ट्वेल्थ तक आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 90% आप मतलब ये जो 11th का पार्ट है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब 12th में जरूर नहीं, जैसे अगर सपोज 11th में है तो ये बेसिस है 12th का. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग 12th में बेटा आप लोग ये ऑलरेडी 11th में आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन, क्लियर. ओके. सो इन द एंड थर्ड इज reactions with metals, clear. So first बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन. तो उसके पहले आपको SN1 रिएक्शन एंड द SN2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्लियर होनी चाहिए. डिफरेंस बिटवीन द SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म. ओके. SN1 mechanism, that means no carbocations present in this, clear. But SN2 reaction carbocations present. Carbocation that means central carbon atom they have to plus charge, that is known as the carbocations, clear. But in the SN2 reaction no carbocation that means rearrangement of the reaction. But rearrangement not reaction is not present in the SN2 reaction. So in the next lecture we discuss about the what is the meaning of nuclear substitution. तो उसके पहले आपका होमवर्क है कि आपको 11th का वापस वो बेस पढ़ना है SN1 to SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर. ऑलरेडी 11th में ये टॉपिक क्लियर हो गया है, तो इट इज़ योर होमवर्क, अंडरस्टूड. सो नाउ बाय, थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स.